This is a very historic CWC being held in Hyderabad. Well, almost on the eve of crucial assembly elections to 5 states, almost on the eve of the Lok Sabha election also. आप सबका इस ऐतिहासिक CWC की बैठक जो हैदराबाद में हो रही है, हैदराबाद में आप सबका स्वागत है। ये बड़ी ऐतिहासिक बैठक इसलिए है कि 5 राज्यों में असेंबली चुनाव होने हैं, उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। For the last 1 year, you've seen that the Congress party has been literally on the roads of this country, picking up issues of the people, addressing the issues of the people, talking about issues which unfortunately do not find to be in the mainstream of our narrative anymore for the last 9 years. पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी इस देश की सड़कों पर है, गलियों में है, ऐसे मुद्दे उठा रही है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है जिन मुद्दों को आजकल विमर्श में, संवाद में स्थान नहीं मिलता। पिछले 9 साल से वो मुद्दे अपना स्थान ढूंढ रहे थे। A lot of you had a complaint with the Congress party that we are not there on the streets of this country. I hope that complaint is over now. Mr. Rahul Gandhi undertook an arduous 4,000 kilometer Bharat Jodo Yatra, which continues even now as we speak. Because Bharat Jodo Yatra was a turning point in the way we do our politics. राहुल जी ने 4,000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की और उस भारत जोड़ो यात्रा जो आज भी जारी है, वो कभी आपको आजादपुर मंडी में दिखती है, कभी मोटर मैकेनिक के यहां दिखती है, कभी मणिपुर में दिखती है, कभी लद्दाख में दिखती है, कभी मोटरसाइकिल डायरीज के माध्यम से दिखती है। उस भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति की दिशा बदल दी। देश में अब राजनीति वापस वैसी नहीं हो सकती जैसे कि अब तक हो रही थी। मुद्दों पर आना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। They have been trying to distract our attention over the last 9 years from one make-believe controversy to another, mythical controversy to another. But Bharat Jodo Yatra has changed that. Whether you are Narendra Modi or Amit Shah, you will have to come down on actual issues that face this country. That's what the Bharat Jodo Yatra has done. But now, I must tell you, it's very difficult for them because it's not in their curriculum. Their curriculum is different from the curriculum which people want. Bharat Jodo Yatra has ensured that the curriculum is decided by the people. जो पाठ्यक्रम होता है, अब वो पाठ्यक्रम जनता तय करेगी। यह भारत जोड़ो यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया। पाठ्यक्रम अब नागपुर से नहीं बन सकता, पाठ्यक्रम अब पार्टियों के हेडक्वार्टर से नहीं बन सकता, पाठ्यक्रम सड़कों और गलियों और गांवों और ढाणियों से बनेगा। यह निश्चित किया भारत जोड़ो यात्रा ने। In this last 1 year, you've also seen another historic election that took place within our party, and Mr. Mallikarjun Kharge became the president of our party. A very historic moment again. I'm recounting the history of the run-up to this CWC because it's as important as the CWC. No other party in this country has had this kind of an open election. We are very proud of our tradition of this, electing our president through an open election. No other party has done it. So that's another historic milestone that we achieved in this last 1 year. So when we meet today, in a few hours from now in the CWC, there will be an open discussion. Everybody is free to voice his or her opinion, suggestion, criticism. That's the way our party functions. That's the way the
blood in the veins of our party stays fresh and boiling. पिछले एक साल में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हुई जो किसी और पार्टी में ऐसी उपलब्धि नहीं हो सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। हमारी पार्टी के भीतर चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष चुने गए। यह एक मील का पत्थर है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, यह उदाहरण हमने पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी के सामने रखा है। आज कुछ घंटों बाद जब हम कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बैठेंगे तो खुले मन से जिसको जो चर्चा करनी है, जिसको जो सुझाव देना है, जिसको जो अपनी बात और अपना मंतव्य रखना है वो रख पाएंगे। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है। इस तरीके से इस पार्टी की धमनियों में जो रक्त है, जो खून है, वो गर्म रहता है, उसमें उबाल रहता है, वो बहता रहता है और वो जीवन की संचार करता रहता है। ये अंतर है हमारी पार्टी और अन्य पार्टियों में। शाम को आपको जानकारी भी दी जाएगी कि क्या क्या निर्णय लिए गए, किसने क्या कहा, कितना महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। वो तमाम बातों पर शाम को आपसे फिर हम मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। इन द इवनिंग वील अप्राइज यू ऑफ ऑल द deliberations, the developments of the day, the resolutions, the decisions passed by the CWC. At every stage, we'll ensure that we keep you informed, and through you, we keep the country informed. The entire country today, India, is watching Hyderabad. They are interested in knowing what the Congress party has to say on the eve of these crucial elections. And we understand the responsibility on our shoulders. In all humility, we will ensure that we do justice to the aspirations and the expectations people have from us. Having said that, I think let's open the... you should ask your questions. Don't ask me anything about what we'll decide in the CWC. We don't know. It's a very democratic process. People will decide and we'll apprise you in the evening. Your questions, please. अब आप अपने सवाल पूछिए। CWC में क्या होना है वो शाम को आपको जरूर हम मुखातिब होकर बताएंगे। उसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछिए। You take a mic. Sir, 14 anchors have been banned by the India bloc. Also, BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming, sir? I do not agree with the word you've used. We have not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred? Go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं। अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं। मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा। इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए। ये सविनय अवज्ञा है। पवन जी, सुरेखा बोल रही हूं मैं।
इंडिया टीवी से। अग्निवीर योजना और वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो है राहुल गांधी जी का जो लद्दाख में एक वीडियो आया है, वायरल हुआ है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही है कि जिस तरीके से ये जो कुछ कहा गया है इसमें उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के मनोबल को गिराने की बात बार बार की जा रही है और देश को बेचने के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरीके मनोबल कब गिरता है सेना का? मैं बताता हूं। सेना का मनोबल तब गिरता है जब एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हों और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रधानमंत्री के ऊपर गुलाब के फूल और पंखुड़ियां फैलाए जा रहे हों, गिराए जा रहे हों, फेंके जा रहे हों, तब मनोबल गिरता है। आप फौज के नाम पर वोट मांगने में नहीं शर्माते हो, लेकिन जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं तो एक शब्द ट्वीट नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, तब मनोबल गिरता है। जो राहुल गांधी ने कहा वो तमाम रिटायर्ड जवान हमारी वही बात कह रहे हैं। हमारा एक स्टेटमेंट कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अध्यक्ष हैं, वो थोड़ी देर में अब रिलीज करने वाले हैं उस पर, और आप स्वयं देखेंगे जितने वेटरन्स हैं वो राहुल जी की इस बात से सहमत हैं। तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं, मनोबल मत गिराइए सेना का। जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं ना कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई घुसा हुआ है, तब आप सेना का मनोबल गिराते हैं। बहादुर सैनिक हमारे लड़ने को तैयार हैं, जांबाज सैनिक हैं, लड़ते हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन यहां बैठकर दिल्ली में जब आप उनका मनोबल गिराते हो और दुश्मन को क्लीन चिट देते हो, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। माइक। सर, बीजेपी का ये कहना है, अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया एक सर्वे का हवाला देते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं और उस सर्वे में 76% के साथ सबसे आगे हैं और उसमें ऋषि सुनक से लेके जो बाइडेन समेत तमाम जो बड़े दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी मोदी जी ने जो है पछाड़ दिया है। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी? अब आपने ये सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अगर आप वो चेहरों की हंसी देख लेते तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता। जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब, उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो, जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो। तो ये हथकंडे दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर कितनी घबराहट है। गृह मंत्री का यह काम है, अब देश के गृह मंत्री हैं, मणिपुर पे चर्चा करिए। आइए, देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। अब ये क्या, ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या ऋषि सुनक यहां इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं अगली बार 2024 में? प्रधानमंत्री को अब समझ जाना चाहिए, हो गया 10 साल हो गए, जनता थक गई अब आपसे, आप भी शायद थक गए होंगे। आराम करिए, 18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए। पवन जी, रवि त्रिपाठी हूं मैं, इधर से सवाल है। आप बार बार कहते हैं बीजेपी के लोगों को कि वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आपने तो नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है, सनातन धर्म वाले मामले का हवाला देते हुए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस पर नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। अभी 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने?
किसी भी समाज में, धर्म में कोई खामियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं, उसे दूर करने का काम हमारा अपना है। मोहन भागवत जी की बात से तो सब, अनुराग ठाकुर सहमत थे। तो त्रुटियों की बात कर रहे हैं। हर धर्म, हर समाज, हर संगठन को अपने। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now